Good evening, everybody. Bachai, first of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day. I hope you are able to hear my voice clearly. Bachai, voice is clear and screen is visible to everybody. Yes, happy Republic Day to everybody. All right. Chalo, students are still joining in. Okay. So, Bachai, in the previous class, we had picked up heredity and variations. We talked about acquired variations, inherited variations, and their implications that we see in heredity. Acquired variations are variations which are, you can say, acquired during the lifetime of an individual. They are not changes in DNA. Therefore, they are not transmitted further. But when you talk about inherited variations, they are changes in DNA. So they will be transmitted from one generation to another. Then we talked about Mendel's experiments. He is known as father of heredity and genetics. So he took a garden pea plant, his experimental plant, और उसपे उन्होंने crosses किए. So we had discussed a bit about his crosses, but not the laws or various terms which are associated with it. So today, before we begin up with monohybrid cross and derive its laws, we are going to do some common terms. कुछ basic terms जो हैं उनको हम pick करेंगे. All right, so that when we are doing the laws, or when we are studying the monohybrid process and further dihybrid process, when we use these terms, you should be clear कि इनका मतलब क्या है. So बच्चे, when you talk about Mendel's monohybrid cross or dihybrid cross, मैंने आपको उस दिन एक चीज ये बताई थी that P had 7 distinguishing characters. P के अंदर 7 distinguishing characters थे, and each character had a contrasting feature. All right, so we are going to use some terms. For example, Mendel ने क्या बोला था? Every character is controlled by a pair of factors. What are factors? Factors are, you can say, जो अब हमें पता है, they are genes, sequences which control particular traits. So बच्चे, सबसे पहले हम define करेंगे. Okay, yes, correct, Anisha. So first of all, we are going to define what do we understand by traits. Trait का क्या मतलब होता है? What are trait? What is a trait? Or what are traits? Traits, they are contrasting features. They are contrasting features of a single character. तो बच्चे, मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर स्टडी किए थे. टू बी प्रिसाइज 7 कैरेक्टर्स ही स्टडीड. सो दे आर कंट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर. हर एक कैरेक्टर का कंट्रास्टिंग फीचर है जिसको हम ट्रेट कहते हैं, राइट? सो बच्चे, इफ आई टेक अ एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं, सीड शेप. सीड शेप इज अ कैरेक्टर. सीड शेप क्या है? सीड शेप इज अ character. Seed shape is a character, shows 2 traits. बच्चे, सीड शेप के अंदर 2 ट्रेट्स हैं. I shows 2 traits as round and wrinkled seeds. ठीक है? Is this clear? What are traits? Traits are contrasting features of a single character. जैसे सीड शेप है, ये कैरेक्टर है, और ये क्या शो करता है? ये 2 ट्रेट शो करता है, या तो राउंड सीड्स होंगे या रिंकल्ड सीड्स होंगे. ठीक है?
Next we are going to do alleles. What are alleles? Alleles का क्या मतलब है बच्चे? Alleles are pair of factors. They are, what are alleles? Alleles are factors. Alleles are factors which control alleles are factors which control a particular trait. ओके तो बच्चे जो मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, तो एलील्स क्या है? एलील्स आर दीज पेयर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. ओके, कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. ऑलराइट, तो ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? एलील्स. ओके, वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट इज अ ट्रेट, तो इसको हम कैसे पेयर ऑफ फैक्टर से लिखेंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? दीज आर फैक्टर्स. वैसे टेक्निकली हमने यहाँ जीनोटाइप लिख दिया है, वैसे हमने टेक्निकली यहाँ जीनोटाइप लिख दिया, हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए. जो टॉलनेस का ट्रेट है, टॉल ट्रेट, इसको कौन कंट्रोल करता है? पेयर ऑफ टी फैक्टर. ठीक है ना? या विल सिंपली राइट कैपिटल टी एलील, और अगर आप शॉर्ट प्लांट की बात करते हो, शॉर्ट ट्रेट, तो पेयरिंग किसकी होनी चाहिए? स्मॉल टी टी. सो इनकी पेयरिंग के हिसाब से आपके कैरेक्टर के ट्रेट्स दिखेंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया? ओके, सो टॉलनेस. ओके, वहीं जा रहे हैं हम बच्चे. एलील्स के बाद जो नेक्स्ट है फिनोटाइप. व्हाट इज अ फिनोटाइप? फिनोटाइप को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चे? देखो, फिनोटाइप का मतलब है जो हमें एक्सटर्नल ट्रेट दिख रहा है, द एक्सटर्नल ट्रेट शोन, या आप लिखो द एक्सटर्नल ट्रेट ऑब्जर्व्ड. The external trait observed is phenotype. या आप सिंपली लिख लो the external trait observed in a cross. उसको हम क्या कहेंगे? phenotype. बच्चे व्हाट इज अ ट्रेट? ट्रेट का क्या मतलब होता है? जैसे प्लांट कैरेक्टर है हाइट, हाइट इज अ प्लांट कैरेक्टर. उसके दो कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं. दो कंट्रास्टिंग फीचर क्या है? या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा. याद रखिए, कैरेक्टर है हाइट,
उसके दो कंट्रास्टिंग फीचर क्या है, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा। तो मेंडल ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया कि उनको फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो बच्चे फैक्टर्स को आज हम क्या बोलते हैं, एलील्स। व्हाट आर फैक्टर्स नाउ नोन एज, दे आर नाउ नोन एज एलील्स। एंड एलील्स you can say they are sequences of genes. Is this clear? All right. तो जैसे बच्चे फिनोटाइप की जब हम बात करते हैं, फिनोटाइप ट्रेट ही है। व्हाट इज फिनोटाइप? ओके, वायलेट और व्हाइट फ्लावर्स। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स फिनोटाइप। फ्लावर वायलेट है, व्हाइट कलर का है, दिस रिप्रेजेंट्स फिनोटाइप। अब बच्चे नेक्स्ट हम इसमें टर्म यूज करते हैं जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? बच्चे जीनोटाइप रेफर्स टू, what is genotype? It refers to combination of, it refers to combination of alleles or factors. It represents combination of alleles present in the organism. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे मैं कहता हूं प्लांट इज टॉल, लेट से प्लांट इज टॉल, तो बच्चे प्लांट इज टॉल, आप इसमें पेयरिंग कैसे दिखाओगे? या तो प्लांट के अंदर क्या कंडीशन होगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, या तो इसके अंदर कंडीशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों कंडीशन हो सकती है ना। ओके, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चे दोनों केसेस में ये जो टॉल है, ये जो प्लांट टॉल है, दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? जो ट्रेट शो हो रहा है, ट्रेट शोन। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज ट्रेट शोन। तो प्लांट इज टॉल, पर बच्चे इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जीन्स का? व्हाट कुड बी द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन कुड बी आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चे इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए भी हम दो टर्म्स यूज करेंगे अलग अलग, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ओके, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ओके, तो कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होमोजाइगस? होमोजाइगस का मतलब है दोनों फैक्टर सेम है। टॉल ऐसे भी बन सकता है, टॉल ऐसे भी बन सकता है। ये जो फिनोटाइप है ये ट्रेट है। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज ट्रेट, ट्रेट शोन। ट्रेट क्या शो हो रहा है प्लांट हाइट में? टॉल। इसको आप दो जीनोटाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर बच्चे दोनों फैक्टर सेम है या दोनों एलील सेम है, तो वो कंडीशन क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। अब बच्चे इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस जीनोटाइप इज नोन एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। What is this genotype known as? This is known as heterozygous dominant. ठीक है, तो बच्चे जीनोटाइप में हम क्या करते हैं? हम ये डिफाइन करते हैं कि इसमें जो फैक्टर हैं दोनों सेम है कि दोनों अलग हैं। अगर बच्चे डोमिनेंट कंडीशन है, जैसे ये डोमिनेंट ट्रेट है बच्चे, टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट है। ओके,
तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल टी टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर दोनों कैपिटल टी हैं तो आप इस कंडीशन को क्या कह रहे हो, होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी टी कौन सा जीनोटाइप है, होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इज दिस क्लियर, ये चीज समझ आ गई। जीनोटाइप से हमें पता लगता है कि फैक्टर्स की पेयरिंग कैसे है। अगर दोनों फैक्टर डोमिनेंट हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, प्लांट तब भी डोमिनेंट ट्रेट ही शो कर रहा है, पर उसके जीनोटाइप में एक रिसेसिव फैक्टर भी है, तो उस कंडीशन को कहोगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब बच्चे अगर मैं एक और ट्रेट लेता हूं इसी का, शॉर्ट। व्हाट इज शॉर्ट, शॉर्ट प्लांट, ये कौन सा ट्रेट है, दिस इज रिसेसिव ट्रेट। दिस इज रिसेसिव ट्रेट। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, और कोई कंडीशन तो बनेगी नहीं। तो दिस इज नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, इज दिस क्लियर। जो रिसेसिव ट्रेट है बच्चे, उसमें तो रिसेसिव फैक्टर की पेयरिंग एक जैसी होनी चाहिए। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट नहीं दिखता, इट कैन बी ओनली सीन इन होमोजाइगस कंडीशन। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी। समझ आ गया सबको, ऑल राइट चलो। तो बच्चे दीज आर सम ऑफ द कॉमन टर्म्स जो हम अब यूज करेंगे। ऑल राइट, सो आई विल बी बिगिनिंग अगेन विद अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड लेट्स सी ये रूल्स कैसे यूज होते हैं या ये टर्म्स कैसे यूज होंगे। तो बच्चे वी विल टुडे व्हाट विल डू, वी विल बी राइटिंग टू रेशियोज, वन इज फिनोटिपिक रेशियो एंड सेकेंड इज जीनोटिपिक रेशियो। उसमें फिर हम दो लॉज भी लिखेंगे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं। Alright, so I am going to begin with a monohybrid cross. Let's say I am crossing a tall plant crossed with short plant. ठीक है, चलो अब बच्चे बताइए, दीज आर प्योर प्लांट्स, प्योर पेरेंट्स मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने प्योर पेरेंट्स लिए थे। अब बच्चे इनका जीनोटाइप लिखो क्या होगा। अब देखो, अब मैं ये टर्म्स यूज कर रहा हूं, व्हाट वुड बी जीनोटाइप ऑफ अ प्योर पेरेंट प्लांट टॉल। जब तक आपको बोला नहीं गया कि प्लांट प्योर नहीं है तब तक आप उसे प्योर ही मानेंगे। तो इट वुड बी कैपिटल टी टी, वेरी गुड। तो पेयर ऑफ एलील्स क्या होंगे, इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, कैपिटल टी टी, एंड शॉर्ट प्लांट में स्मॉल टी टी। ऑलराइट, अब बचे गैमीट फॉर्मेशन होगी। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस विल अकर। तो गैमीट क्या बनेंगे इसमें, कैपिटल टी, यही कंडीशन बन सकती है और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, कैपिटल टी। और इसमें क्या कंडीशन बनेगी, स्मॉल टी। दिस इज द कंडीशन विच इज पॉसिबल, और कोई कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड वंस फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो F1 जनरेशन में क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑलराइट, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स यही आएंगे। तो बच्चे ये क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा इसका, व्हाट इज फिनोटाइप, फिनोटाइप ऑल टॉल प्लांट्स। ओके, F1 जनरेशन में क्या हो रहा है बच्चे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी आपको मिल रहा है उसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप इज ऑल टॉल प्लांट्स। पर बच्चे व्हाट इज द जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा इसका, जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। देखिए ध्यान से,
इज दिस क्लियर? F1 जनरेशन में बचे, F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स आएंगे उनका फिनोटाइप क्या होगा? ऑल टॉल। पर जो जीनोटाइप है सबका क्या होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? ओके, ऑल राइट। चलो अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन में से एक प्लांट को सिलेक्ट करके सेल्फ पॉलिनेशन की। तो अब हम ऐसे बिगिन करेंगे। ये सेकंड फेज हो गया क्रॉसिंग का, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बच्चे यहां जब गैमीट्स बनेंगे, ओके, जब यहां गैमीट बनेंगे तो यहां हर एक प्लांट से दो टाइप के गैमीट बन सकते हैं। दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सो यू विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इज दिस क्लियर? ओके। और बच्चे जब F2 जनरेशन बननी है, F2 जनरेशन में हमें प्रोबेबिलिटीज देखनी है सारी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बी यूजिंग बैटेसन स्क्वायर। F2 जनरेशन में हमें क्या करना है? इनकी फ्यूजन करनी है। सो व्हाट विल बी डूइंग, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, लेट मी जस्ट पिक दिस अप। यहां से बॉक्स ले लेते हैं। ऑलराइट, so F2 generation, I'm just going to put this box here, right? Okay, अब क्या करेंगे बच्चे? Let's write the sequence, capital T small t, और ऊपर देखो कैपिटल T स्मॉल t। ओके, अब क्रॉसिंग करिए, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t। बच्चे जब भी आप हेट्रोजाइगस लिख रहे हैं कभी भी ये गलती नहीं करनी। आई थिंक ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। यू विल नेवर राइट रिसेसिव ट्रेट इन फ्रंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट हमेशा आगे आएगा, सॉरी डोमिनेंट फैक्टर हमेशा आगे आएगा। तो स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी इधर एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब बच्चे आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब आपको दो टाइप की रेशियोज लिखनी है। F2 जनरेशन में मुझे ये मिल गया। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट फिनोटिपिक रेशियो। F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो लिखनी है। ऑलराइट, फिनोटिपिक रेशियो टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। तो बच्चे फिनोटिपिक रेशियो लिखिए टॉल शॉर्ट। कितने टॉल प्लांट्स होंगे देखिए, रेशियो 1 2 3, 3:1। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, अब बच्चे यहां आपको जीनोटिपिक रेशियो ऐड करनी है। फिनोटिपिक रेशियो तो हो गई, अब इसमें हमें जीनोटिपिक रेशियो भी लिखनी है। तो बच्चे जीनोटिपिक रेशियो हम लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। ऑलराइट, तो जीनोटिपिक रेशियो में बच्चे आपको सारे जीनोटाइप्स लिखने हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो बच्चे देखिए, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमें ये जीनोटाइप के नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो में सबसे पहले लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? दैट इज अबाउट 25%, वन पार्ट। देखिए ये वाला पार्ट, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, so this is only one part, 1. सेकेंड जो रेशियो बनेगी दैट इज ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट,
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 2 है, एंड बच्चे लास्ट इज होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो बच्चे होमोजाइगस रिसेसिव कौन सा है, ध्यान से देखिए, दिस वन, सो दिस इज ऑल्सो 1, सो 1:2:1। तो बच्चे व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, आपको याद क्या रखना है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन यू स्टार्ट विद अ प्योर प्लांट, जब आप F2 जनरेशन में आओगे तो फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 3:1 रहेगी, 3:1, 3 इज इन फेवर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 रहेगी। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप कोई भी कैरेक्टर पढ़ लीजिए, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स हैं, तो रिजल्ट हमेशा यही आएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, ठीक है। तो ये रेशियो याद रखनी है, इज दिस क्लियर। आप कोई और भी क्रॉस कर सकते हैं, राउंड सीड्स के साथ करिए, फ्लावर कलर के साथ करिए, फ्लावर पोजीशन के साथ करिए, यही आएगा रेशियो, F2 जनरेशन में यही रेशियो आनी है, ठीक है, इफ यू स्टार्ट विद प्योर प्लांट्स। अब बच्चे बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 लॉज दिए, ओके, मेंडल गेव 2 लॉज बेस्ड ऑन दीज। तो जो बच्चे उसने पहला लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चे आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बेसिस पे उसने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सबसे पहले बच्चे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखने जा रहे हैं। बच्चे व्हाट डज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट, बच्चे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्चुअली मियोसिस को एक्सप्लेन करता है। अगर आप यहां ध्यान से देखो बच्चे, टॉल प्लांट हमने लिया, इसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी। जब गैमीट बनेंगे तो ये फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और ये दोनों कैसे सेपरेट होंगे, गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते, ये मियोसिस ही है एक्चुअली। तो उसको उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम दिया, क्योंकि मियोसिस उस टाइम नहीं पता थी। ओके, सो व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, during gamete formation, during gamete formation the pair of factors separate from each other, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं देखूं तो ये मियोसिस ही है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा, जो पेयर है फैक्टर्स का वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। और किस तरीके से सेपरेट होता है, एक गैमीट में पेयर का सिर्फ एक ही फैक्टर जाएगा, दोनों एक साथ एक गैमीट में नहीं जा सकते। ओके, इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर? एंड each and gamete contains only one factor of the pair. मुझे इसका क्या मतलब है, यहां ध्यान से देखिए, जब जब गैमीट बनते हैं तो क्या होते हैं, देखो यहां जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी,
जब गैमीट बनेंगे तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग होंगे। किस तरीके से अलग होंगे कि गैमीट में ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, ये दोनों ऐसे नहीं जा सकते एक गैमीट में, गैमीट ऐसे नहीं बन सकता, दिस इज रॉन्ग, दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मियोसिस होती है जैसे, पेयरिंग अलग अलग हो गई, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जो फैक्टर्स हैं पेयर में वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों एक साथ आगे नहीं जा सकते। इज दिस क्लियर? अब समझ आ गई बात? बच्चे जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। Okay, is this clear to everybody? All right. बच्चे इट इज प्रोबेबिलिटी ना, जैसे एक्स वाई होता है मेल्स में स्पर्म्स में, तो दो टाइप के स्पर्म्स बनते हैं एक्स एंड वाई, प्रोबेबिलिटी है ना 50-50। सो यस इट्स रैंडम, तभी तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड। लेट्स सी दिस, आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। ओके अभी हम एक क्रॉस और आगे करेंगे तो उससे समझ आएगी। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आपको बच्चे ये समझना है कि बस जो फैक्टर हैं पेयर में वो अलग हो गए एक दूसरे से, वो दोनों एक साथ नहीं जाएंगे आगे। अगर दोनों सेम फैक्टर थे तो ऑब्वियसली एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, पर सब में एक ही फैक्टर होगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन थी फिर दो टाइप के गैमीट बनेंगे, 50-50% चांस, ठीक है ना, इस तरीके से। ऑलराइट चलो आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस नेक्स्ट है। अब बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इट इज बेस्ड ऑन रिसेसिव ट्रेट एंड डोमिनेंट ट्रेट जो हम देख रहे हैं। ओके तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें, आकृति जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है, आई विल बी जस्ट डूइंग अ टेस्ट क्रॉस, उधर ये बात समझ आ जाएगी, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, जस्ट वेट अ मोमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम जब बात करते हैं तो बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, every character is controlled by a pair of factors, every character is controlled by a pair of factors, ठीक है। पर बच्चे हमने क्या सीखा है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर देख रहे हो वो पेयर ऑफ फैक्टर से कंट्रोल होता है, पर एक ऐसा फैक्टर है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट ट्रेट शो करता है, तो उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट। सो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर्स always expresses, one of the factors always expresses itself even in heterozygous condition. Okay, this factor controls, या आप कह सकते हो दिस फैक्टर शोज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट हाइट को देखूं तो प्लांट हाइट में
दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, या तो प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा, पर उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट था टॉल, तो टॉल जो है बच्चे डोमिनेंट ट्रेट क्यों है? क्योंकि ये फैक्टर टी से कंट्रोल होता है। तो बच्चे फैक्टर टी इस कंडीशन में हो पेयरिंग में होमोजाइगस कंडीशन, या कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां ये अकेला है, दूसरी साइड स्मॉल टी है, फिर भी प्लांट टॉल है। पर बच्चे अगर आपको प्लांट शॉर्ट चाहिए तो आपके पास यही कंडीशन है होनी चाहिए। तो बच्चे वी से स्मॉल टी इज रिसेसिव। ये जो फैक्टर कंट्रोल कर रहा है ट्रेट, ये रिसेसिव है। ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट भी एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना। तो दिस एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है कि फैक्टर जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, जब वो प्रेजेंट है तो ट्रेट डोमिनेंट ही शो होना है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। रिसेसिव कंडीशन तभी शो होगी अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है, अगर हेट्रोजाइगस में है तो रिसेसिव ट्रेट कभी नहीं शो होता, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, चलो अब बचे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉस है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम दिस। बचे हमने अभी जब ये प्लांट हाइट का क्रॉस किया तो इसमें हमने प्योर प्लांट के साथ स्टार्ट किया, ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कैसे स्टार्ट किया? फ्रॉम अ प्योर प्लांट। इसमें हमने एक कैरेक्टर को स्टडी किया और प्योर पेरेंट से स्टार्ट किया है। पर बच्चे कभी कभी ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना कि प्योर पेरेंट नहीं है। जैसे देखो ये कंडीशन अगर मैं स्टार्ट करूं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी टी। बच्चे पहले मुझे बताइए इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या कहेंगे? दिस कंडीशन इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो, अब आपको बात समझ आनी चाहिए। दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इट इज नॉट प्योर। ये प्योर प्लांट नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। फिनोटाइप इसका टॉल ही है, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? दिस कंडीशन वुड बी होमोजाइगस रिसेसिव। Okay, this condition is homozygous recessive. कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी टी इज होमोजाइगस रिसेसिव। अब बचे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। पर बचे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसमें आपको दो टाइप के गैमीट्स मिलेंगे। एक गैमीट्स बनेंगे जिसमें सिर्फ कैपिटल टी होंगे, एक गैमीट्स बनेंगे जिसमें सिर्फ स्मॉल टी होंगे। पर इस कंडीशन में क्या होगा? ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, यहां भी ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। पर बच्चे क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है तो इसमें एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे, इसमें एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो जब यहां बच्चे गैमीट्स बनेंगे, अब बताइए यहां गैमीट बनेंगे, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो यहां दो टाइप के गैमीट बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों टाइप के। यहां भी बच्चे दोनों सेपरेट होंगे एक दूसरे से, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। पर बच्चे गैमीट तो एक ही टाइप के हैं ना, गैमीट तो एक ही टाइप के हैं क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन थी। सो ऑल गैमीट्स विल बी हैविंग स्मॉल टी ओनली। तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। ऐसे लिख के क्या करेंगे? गैमीट तो एक ही टाइप के बन रहे हैं तो इसलिए ऐसे लिख दो। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो अलग टाइप के गैमीट है क्योंकि ये फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? अब समझ आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये याद रखना है कि फैक्टर अगर अलग है तो दो टाइप के गैमीट बना दो अलग अलग। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तब भी फैक्टर ने अलग होना है, पर बचे उस केस में दो अलग
टाइप के थोड़ी हैं गैमेट्स, एक ही टाइप के गैमेट है ना, तो गैमेट एक ही दिखा दो। ऑल राइट, अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जब आप प्योर पेरेंट के साथ स्टार्ट करते हो, जब आप प्योर पेरेंट के साथ स्टार्ट करते हो तो F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स ही आते हैं। पर बच्चे यहां करके देखिए, अब यहां क्या होता है, यहां थोड़ी कंडीशन अलग है। ये देखो, इसको इसके साथ क्रॉस करो और इसको इसके साथ क्रॉस करो, अब सारी प्रोबेबिलिटीज देख सकते हो आप। लेट्स ट्राई टू एनालाइज क्या होगा। 50-50 चांस हो गया ना। अब यहां क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया है, इज इट डिफरेंट? डिफरेंट हो गया ना। अगर आप प्योर पेरेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो रिजल्ट क्या था, सारे टॉल प्लांट मिल रहे थे। पर बच्चे अगर मैं प्योर डोमिनेंट प्लांट के साथ स्टार्ट ना करूं तो मुझे F1 में ही 50-50 रेशियो मिल जाएगी, तो रिजल्ट अलग हो गया। तो बच्चे आप ये कह सकते हो कि जो मेंडल की स्ट्रेटेजी थी ना प्योर पेरेंट के साथ स्टार्ट करने की, दैट वाज वेरी गुड। अदरवाइज जो रिजल्ट अब उसको मिले थे, अगर वो प्योर पेरेंट के साथ स्टार्ट ना करता तो बहुत कंफ्यूजन होती है उसको। ठीक है, तो देखो यहां F1 में क्या रिजल्ट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बच्चे 1:1, यू आर गेटिंग 1:1। टॉल प्लांट कितने मिल रहे हैं आपको, टॉल प्लांट रेशियो शॉर्ट प्लांट। बच्चे दिस इज इन F1 ओनली, ये F1 का ही रिजल्ट है, 1:1। एंड दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉसिंग ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप प्योर पेरेंट के साथ स्टार्ट करते हो, प्योर पेरेंट में F1 में सिर्फ टॉल प्लांट ही मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये जो क्रॉस है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन वाले प्लांट के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो 1:1 में रिजल्ट आएगा डोमिनेंट और रिसेसिव का। ओके, अब बच्चे ये जो क्रॉस है दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज दिस क्रॉस नोन एज, दिस इज टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। बच्चे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम यूज करते हैं टू जज। अब देखो ये वाला जो प्लांट हम देख रहे हैं बच्चे, दिस प्लांट, इसका फिनोटाइप क्या है, इट इज टॉल, ये देखने में टॉल है। अनेशा वही बताने लगा हूं टेस्ट क्रॉस क्यों। बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट टॉल है, पर बच्चे क्या फिनोटाइप देख के आपको फैक्टर की पेयरिंग का पता चल जाएगा? बाहर से प्लांट को आपने देख लिया कि प्लांट टॉल है, आपको क्या पता लग जाएगा कि उसके अंदर फैक्टर की पेयरिंग कैसे है, इज इट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस? तो वो तो तभी पता चलेगा ना, या तो आप उसको सेल्फ पॉलिनेट करोगे, सेल्फ पॉलिनेट करके हमेशा अगर टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्योर है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे अभी हमने किया है, उसको रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कर दो। अगर बच्चे वो F1 में टॉल प्लांट ही देगा सिर्फ, दैट मीन्स इट इज प्योर। पर अगर F1 में 50-50 रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो फिनोटाइप डोमिनेंट दिखा रहा है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसलिए हम टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ये तो बच्चे देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एक एप्लीकेशन हो गई, मेंडल के दिमाग में नहीं आई है ये बात, ये तो बाद में हम इसको अप्लाई करके देख रहे हैं। अब जब हमें रिजल्ट्स पता लग गए, मेंडल ने तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई कि प्योर प्लांट के साथ ही स्टार्ट किया, तो इसलिए उसको सही रिजल्ट मिल गए। टेस्ट क्रॉस इज एप्लीकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इफ यू सी एनी प्लांट विच इज शोइंग डोमिनेंट ट्रेट, फिनोटाइप उसका डोमिनेंट है, पर बच्चे हम उसका अंदर के फैक्टर्स थोड़ी देख पाएंगे, वो तो क्रॉसिंग करके ही पता चलेगा। या तो सेल्फ पॉलिनेट करो या दूसरा तरीका है कि उसको टेस्ट क्रॉस कर दो। टेस्ट क्रॉस में उसको रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो F1 में क्या आएगा, 1:1 आ गया, तो दैट मीन्स द प्लांट इज नॉट प्योर, द प्लांट इज नॉट प्योर।
तो बच्चे इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? 1:1। अगर प्लांट प्योर होता तो आपको सिर्फ टॉल प्लांट ही मिलते, पर क्योंकि ये प्लांट डोमिनेंटली प्योर नहीं था तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो क्या आई है? 1:1। तो टेस्ट क्रॉस में 1:1 आती है फिनोटिपिक रेशियो F1 में। इज दिस क्लियर? डिफरेंट रिजल्ट है ना। प्योर प्लांट के साथ बच्चे क्या रिजल्ट आ रहा था F1 में? सारे फिनोटिपिकली टॉल प्लांट ही आ रहे थे। देखो सारे टॉल प्लांट ही आ रहे थे F1 में। पर अगर मैं प्योर प्लांट के साथ स्टार्ट ना करूं तो F1 में ही मुझे 50-50 रिजल्ट मिल गया। तो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या करता है बच्चे? दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। It is application of monohybrid cross. Okay. और इससे हम बच्चे क्या डिटरमिन करते हैं? इट विल हेल्प या इट हेल्प्स टू डिटरमिन द जीनोटाइप of plant showing dominant trait। तो बच्चे जिस प्लांट का डोमिनेंट ट्रेट है उसको टेस्ट करने के लिए कि उसका जीनोटाइप क्या है हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 1:1। वी गेट अ 50-50 रिजल्ट। ठीक है, आप इसको देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो। लेट्स टेक इट फर्दर। लेट्स से आपके पास राउंड सीड्स हैं। राउंड सीड्स, क्रॉस देम विथ रिंकल्ड सीड्स। ओके, तो बच्चे राउंड सीड्स प्योर पेरेंट होगा तो कैपिटल आर, पर अगर प्योर पेरेंट नहीं होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। बच्चे जब आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है तो हमें तो प्योर पेरेंट से स्टार्ट करना है, तो आप यहां से शुरू करोगे। पर अगर 50-50 का रिजल्ट आ रहा है फिर ये यहां से स्टार्ट है, कैपिटल आर स्मॉल आर। और रिंकल्ड सीड्स तो बच्चे होमोजाइगस कंडीशन में ही रहेंगे। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? इसको क्रॉस को करके देखिए खुद, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके ना? कैपिटल आर आर को क्रॉस करो स्मॉल आर आर से तो मेरा रिजल्ट कुछ और आएगा जैसा मेंडल को मिला था। पर अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करूंगा तो मुझे 50-50 का रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इन दोनों की क्रॉसिंग कर दूंगा ना तो मुझे F1 में 50-50 मतलब 1:1 मिलेगा। 1:1 एंड दिस विल इंडिकेट कि जो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है वो प्योर नहीं है, इट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है बच्चे? क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ आ गया सबको? तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको कैरेक्टर्स दिए जाएंगे, आपको उनके जीनोटाइप लिख के रिजल्ट शो करने हैं। F1 जनरेशन गैमीट क्या बनेगा, फिर फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, देन यू मूव टू F2। उधर फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, क्रॉसिंग करके दिखाना पड़ता है। इट इज ऑफ 3 मार्क्स। या आपको ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक प्लांट है जो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस किया तो 50-50 रेशियो आया, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो फिर आप बचे उसमें उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ स्टार्ट करोगे। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। या आपको बोला जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करो, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्या मतलब है
What do you mean by homozygous recessive condition? What are alleles? What is dominant trait? What is recessive trait? Justify with a cross and so on. तो बच्चे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर्स, ट्रेट्स एंड लॉज, दीज आर इंपॉर्टेंट. ये आपको क्रॉस करके करने आनी चाहिए. ठीक है? Is this clear to everybody? Yes, sir. Okay. चलो, ऑल राइट बच्चे. तो हम क्या करेंगे आज हम यहीं रुकेंगे. आई डोंट वॉन्ट टू ओवर बर्डन यू. मैं कोई और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता. हम नेक्स्ट क्लास में डायहाइब्रिड क्रॉस बिगिन करेंगे. डायहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले आई वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग. इस पे टाइम स्पेंड करना है. You have to spend time on understanding how monohybrid cross is working. और यहां जो हमने टर्म्स यूज किए हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है? ट्रेट्स, एलील्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप की कैटेगरीज, फिर ये रेशियो जो आज हमने लिखी हैं, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन टेस्ट क्रॉस. इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करिए. फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो विल स्टार्ट विद डायहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है? तो डायहाइब्रिड क्रॉस फिर जल्दी समझ आएगा. ऑलराइट बच्चे. चलो ठीक है. ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. सी यू ऑल ऑन फ्राइडे विच इज आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है? प्लीज गो थ्रू इट, रिवाइज इट थ्रू, एंड मोस्ट probably in the next class we'll be able to finish this off. क्योंकि देखो डायहाइब्रिड क्रॉस जब हो जाएगा उसके बाद उसमें एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. सो वी विल बी एबल टू फिनिश ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? चलो, ऑल राइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. बाय बाय एवरीबॉडी.